गुड इवनिंग बेटा। फ्लूइड मैकेनिक्स पे थोड़े क्वेश्चंस रिवीजन कर लेंगे बेटा, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। हाँ, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। द वॉल्यूम ऑफ एन एयर बबल इज डबल्ड एज इट राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक टू इट्स सरफेस. The atmospheric pressure is 75 centimeter of mercury. The ratio of the density of the mercury to that of the lake water is 40 by 3. The depth of the lake will be equal to how much? ये मान के चलो मेरे पास लेक है like this and water is being filled in this. ठीक है ना। क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ एयर बबल इज डबल एज इट राइजेस फ्रॉम द बॉटम. यहाँ पर एक छोटा सा बबल है, जब यहाँ पर सरफेस पे आ गया तो डबल हो गया रेडियस. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन एज 75 सेंटीमीटर ऑफ mercury. The ratio of the density of mercury to that of the water is 40 by 3. The depth of the lake will be equal to how much? तो यहाँ पर अगर इसका वॉल्यूम v है तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना बन गया बेटा? 2v. ठीक है ना। इज इट क्लियर? The volume of the air is doubled as it rises from the bottom of the lake to its surface. The atmospheric pressure is 75 centimeter of mercury column. यानी यहाँ पर जो atmospheric pressure हो जाएगा P नॉट, यहाँ पर जो हो जाएगा that will become for me 2 times of P नॉट. atmospheric pressure के बराबर है ना बेटा? क्लियर है? Is it clear? Given in the problem for me what? Atmospheric pressure is equals to 75 centimeter of mercury column. यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? atmospheric pressure. It is your atmospheric pressure. ठीक है ना? Is it clear? चलो कितना आ रहा बताइए. The ratio of the density of the mercury to that of water is given as 40 divided by 3. Density of mercury divided by water is 40 by 3. The volume of the air bubble is double as it rises from the bottom of the lake to its surface. The atmospheric pressure is 75 centimeter of mercury. The ratio of the density of the mercury to that of the water दे रखा है. The depth of the lake will be equal to how much? यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा? P naught plus H rho g, isn't it? Height of this one is, say for example, how much for me or H? Clear? $75 सेंटीमीटर है इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए. जल्दी से बोलिए आंसर कितना हो रहा? Density of mercury into acceleration due to gravity is equals to 75 centimeter यानी 10 power minus 2 यानी divided by 100 कर लो. ऐसे सिस्टम में हो जाएगा. Density of water into G into your H. G और G gets cancelled. Density of mercury divided by density of water is equals to, ये कितना हो जाएगा बेटा? H into this value will become for me 100 by 7. अपने को चाहिए क्या? तो इंटू 75 लिख लेता हूँ इसको पहले. इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू H. H ही होना है ना. सो ये दे रखा है प्रॉब्लम में 40 by 3. तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 40 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू H. ए वाला चलेगा. 2 2 जा 2 5 जा, ये 2 और ये 2 चले गया बेसिकली. 5 1 जा 2 5 5 जा 50 आ गया. इसकी वैल्यू कितनी आ रही बेटा? इज इट क्लियर?
क्लियर? Any doubt to anyone? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A beaker containing a liquid of density rho, a beaker containing a liquid of density rho moves up with an acceleration a. The pressure due to the liquid at a depth h below the free surface of the liquid will be equal to how much? When it is moving up, you know that G effective will be equal to your G plus or minus a beta. So when it is moving up, acceleration due to gravity will be G plus a. And when it is moving down, it will be G minus a. अब यहाँ तो ऊपर जा रहा है ना बेटा, तो pressure will be equal to how much? P is equal to H into G of your up into your H rho into G. ये हो गया rho. तो ये हो गया मेरे पास rho. G value will be equal to G plus of your A into your H. G plus of your A into your H. So what will be the answer for that one? C. आ गया. यहाँ मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया ना. ये कितना आ रहा है देखो बेटा, मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर ध्यान नहीं दिया. डेंसिटी ऑफ mercury डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है मेरे पास? 40/3. सो 40 डिवाइडेड बाय 3 into 75 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू h. ये वाला चले गया. 2 2s 2 5s, ठीक है ना. दिस वन इज 5 1s, ये 5 1s 5 6 7 या 2 5 5s 25, ठीक है ना. यानी 30. 2 into 15 will be 30. 30 divided by 3 is equals to h. यानी 3 1s 3 10s, यानी 10 will be the answer for this. ठीक है ना. चलो वेरी गुड. हाँ, तो उसके वाला क्या हो जाएगा? when it is moving up, it is h rho into g plus a. Next one. Viscous drag force depends on beta size of the body, velocity with which it moves, viscosity of the fluid, all of this. पहले ये बताओ विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है? विस्कोसिटी का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? F is equals to your neta into A into your V divided by your L. V by L is known as velocity gradient, ये और ये से साथ माइनस साइन, ठीक है ना. F is your viscous drag, ये हो गया viscous force. Neta is coefficient of viscosity, A is area. एरिया किस पे डिपेंड करेगा? एरिया will depend upon size. V is your velocity. अब बताइए किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड कर रहा है. सो ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर. डी ऑप्शन, ऑल द अबव. वेरी गुड. नेक्स्ट वन. The terminal velocity of a small sized spherical body of radius r falling vertically in a viscous liquid is given by the proportional t. Terminal velocity किसके बराबर होता है बेटा? डायरेक्टली बोलना. Terminal velocity is directly proportional to square of the radius. Simple question. B. Very good. Very good. चलिए नेक्स्ट वन. फिफ्थ वन देख लीजिए. In a hydraulic jack as shown, mass of the car W is equals to 800 kg, A1 is equals to 10 centimeter square, A2 is equals to 10 meter square. ये देखो सेंटीमीटर्स में है और ये मीटर्स में है, तो इसका शुद्ध कुछ गड़बड़ है, सेंटीमीटर ही होना चाहिए शायद, आई डोंट नो. The minimum force required to lift the car will be equal to your how much? कन्वर्ट कर लेंगे, उससे ज्यादा क्या है. पास्कल्स लॉ लगा लीजिए. अप्लाई दी पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ याद है आप लोगों को? F1 by your F2. F1 divided by इसका एरिया A1 will be equal to F2 divided by A2, ठीक है ना. F1 की वैल्यू कितनी है बेटा? F1 की वैल्यू F के बराबर है. F2 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? F2 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 800 kgs. kg है ये. फोर्स होना है ना बेटा, न्यूटन होना चाहिए यूनिट, అంటే 800 1 kg वेट, यानी वेट हो गया मतलब mg. ये हो गया मास ना, मास इनटू ग्रेविटी. सो दिस विल बी इनटू जी होना चाहिए, यानी इनटू 10, यानी ये हो गया 8000. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, माइक्रो लेवल एनालिसिस है. तो यहाँ पर उसने स्मार्टली वेट भी दिया. W इज इक्वल टू m इनटू जी होना चाहिए, लेकिन दे रखा है उसने सिर्फ मास 800 kg, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है. ये आप लोग थोड़ा ध्यान में रखना है बेटा. वेरी गुड. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है बेटा. A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? A1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर स्क्वायर. 10 मीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर्स में कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर है ना.
ठीक है ना। तो अब सब्स्टिट्यूट कर लो इसको। एफ की वैल्यू है मेरे पास, एफ की वैल्यू है मेरे पास एफ डिवाइडेड बाई ए1 की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एफ टू की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8000 डिवाइडेड बाई ए2, ए2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 into 10 to the power of 4। Incoming voice call from Atif Madarsa sir. ठीक है, इज इट क्लियर। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, मुझे मालूम था वो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं बोल के। देखिए 8 न्यूटन दिया आंसर ऑलरेडी कोई। 8 न्यूटन कौन दिए, नूरा नजीर। देख लो बेटा एक बार कैलकुलेशन देख लो, छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक कर गया, ये 10 ये 10 चले जाएगा। सो इट इज एफ इज इक्वल्स टू योर 8 इंटू ये हो गया 10 पावर 3, ये हो गया 10 पावर 4, 10 पावर 3 और ये चले गया तो ये कितना आ गया 8/10। 8/10 मतलब कितना 0.8 न्यूटन। तो 0.8 न्यूटन विल बी द आंसर। देखो देखने के लिए छोटा है क्वेश्चन, लेकिन टेक्निकली आप मिस्टेक करने के चांसेस 100%। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। A wooden cube just floats inside the water with a 200 gram mass placed on it. When the mass is removed, the cube floats with its top surface 2 centimeters above the water level. What is the side of the cube? ऐसे वाले क्वेश्चंस करने आना चाहिए था, मैंने एक से दो बार बोले भी थे ऐसे वाले को। A wooden cube just floats inside the water, यानी मेरे पास वाटर का एक कंटेनर है ऐसा कुछ। वाह, हाँ ठीक है, चलिए इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मतलब ये वाटर है बेसिकली इस कंटेनर में। ट्राई करिए जब तक आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। इसमें क्या, वुडन ब्लॉक इज जस्ट फ्लोटिंग इनसाइड द वाटर विद 200 ग्राम मास प्लेस्ड ऑन इट। व्हेन द मास इज रिमूव्ड द क्यूब फ्लोट्स विद इट्स टॉप सरफेस 2 सेंटीमीटर। यानी मैं यहाँ पर पहले वाला सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला सच सिचुएशन है। इसका मास इज इनसाइड विद 200 ग्राम प्लेस्ड ऑन इट, यानी उसके ऊपर जो है ना एक 200 ग्राम का मास रखा गया हुआ था, केस 1। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको निकाल दिया। सर आंसर ये इज इन मीटर्स, A2 इज इन मीटर, हाँ A2 इज इन मीटर्स बेटा। हाँ तो उसने क्या किया, द मास इज रिमूव्ड, ये जब मास निकाल दिया तो ये वाला बॉडी है ना थोड़ा ऊपर चले गया ऐसा कुछ। ये कितना ऊपर गया राइट नाउ 2 सेंटीमीटर्स ऊपर गया। ठीक है ना। व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब, यानी इसका साइड कितना हो सकता है, दिस साइड विल बी इक्वल टू, हम पूरा एक साइड निकालना आपने। क्या करेंगे बेटा, व्हेन इट इज बीन टोटली इमर्स्ड, क्या लिखोगे, वेट ऑफ दिस बॉडी विल बी इक्वल टू, बायोन फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाओगे, बायोन फोर्स विल बी इक्वल टू योर वॉल्यूम इमर्स्ड density of liquid into G, isn't it? So weight of this body will be equal to how much? ये तो बैलेंस हो रहा था ना, तो सेकेंड वाले कंडीशन में weight of this body m into G is balancing your buoyant force, यानी buoyant force की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, m into G is equals to वॉल्यूम ऑफ द पार्ट ऑफ द क्यूब, यानी जितना वॉल्यूम इमर्स हुआ है वही लिखेंगे हम लोग, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इनटू योर जी, ये जी और ये जी यहाँ पर चले गया। मास विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, यहाँ पर जितना मास रखा गया होता है 200 ग्राम ऑफ मास इज बीन केप्ट ऑन दिस वन, यानी ये हो गया 200, isn't it, that is equals to कितना होगा फर्स्ट वाले सिचुएशन में बेटा, टोटल वॉल्यूम इमर्स्ड, कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है राइट नाउ फॉर दिस वन, मास वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इनटू लेंथ लिखोगे ना, एरिया इंटू लेंथ ही लिखोगे ना, ए स्क्वायर इंटू इसका एक लेंथ कितना है मेरे पास 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ पर तो मास, व्हेन द मास इज बीन रिमूव्ड द आइस व्हिच क्यूब्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी दैट वेट विल बी बैलेंसिंग, इनिशियली यहाँ पर जो वेट था mg दैट इज बैलेंसिंग द बायोंट फोर्स, इजंट इट। तो यहाँ पर हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू योर g, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है मेरे पास 1, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g की वैल्यू हो गई 10, 10 हो गया तो ये वाला चले गया, ठीक है ना, क्लियर। तो 2 1 जा, ये हो गया 2 10 जा,
यानी एल स्क्वायर की वैल्यू हो गई मेरे पास 100 सेंटीमीटर्स, यानी एल इज इक्वल टू मच फॉर मी 10 सेंटीमीटर्स, यानी लेंथ ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू मच फॉर मी 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना। सेकेंड वाले केस में, ये केस नंबर 1 के लिए था, केस नंबर 1 के लिए था। अब केस नंबर 2 के लिए, क्योंकि इसका लेंथ मैंने एल ले लिया, इसका भी लेंथ एल ले लिया। केस नंबर 2 के लिए देखो बेटा, केस नंबर 2 देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर। देखो 200 ग्राम ऑफ मास इज बीन प्रोवाइडेड, दैट बायोन फोर्स इक्वेट कर रहा है ना बेसिकली, तो L-2 हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट जो वाटर में है, ये जो वाटर में है, ये वाला कितना हो जाएगा L-2। टोटल लेंथ कितना है मेरे पास 10 - 2, मतलब दैट विल बी इक्वल टू मच 8 सेंटीमीटर्स। So what side of the cube? So what is the type of the cube? Above the water level, 2 centimeter above level level. What is the side of the cube inside the water? मतलब 8 centimeter will be the best answer. आगे सभी को, is that clear? When mass is removed, the cube floats with the surface of the above. What is the side of the cube? ही पूछ रहा है ना, तो 10 होगा बेटा, sorry. How much part is in the water अगर पूछा तो 8 centimeter होगा, तो total length is equals to 10 centimeters. ठीक है? Clear? 8 सेंटीमीटर इन द वाटर, लेकिन वो नहीं पूछ रहा उसके अंदर, व्हाट इज द टोटल साइड ऑफ द क्यूब पूछ रहा है। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, a block of the steel of size 5 into 5 into 5 centimeter cube, ये सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, is weighted in the water. If relative density of the steel is 7, its apparent weight will be equal to your how much? रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या बेटा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अपैरेंट वेट कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द अपैरेंट वेट? मतलब लॉस, apparent weight is equals to weight in air, यानी density of the body, volume of the body into g, weight in air minus weight in water, density of your water, volume of the body जो भी immerse है into your g, यानी ये हो गया volume of the body into g common, this is the density of the solid minus density of your water, what it may be your take, तो हो गया density of the body मतलब solid जो भी है basically, solid और liquid what it may, 1930, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू हाउ मच? 5 into 5 into 5 दे रखा है, इंटू जी की वैल्यू तो हो गई जी, इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू हाउ मच? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टील इज गिवन एज ऑफ योर 7, दैट मींस दिस इज 7 सीजीएस नेक्स्ट में, और दिस विल बी इक्वल टू 1, सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? 5 into 5 7 minus 1 into 6, तो ये हो जाएगा 6 into 5 into 5 into 5 ग्राम वेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 1 एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड विल बी इक्वल टू 7, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो सीजीएस सिस्टम में मैंने एक से 100 बार बोला था, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इफ डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इन द एसआई सिस्टम। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक कैसे लिखते हो आप लोग? याद है आप लोग को? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, वही दे रखा है बेसिकली ऑप्शन। क्लियर है? चलिए, एवरीवन इज क्लियर विद दिस वन? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, a cubical block is floating in a liquid with 1/4 of its volume immersed in the liquid. If the whole of the system is accelerating upward with an acceleration g by 4, the fraction of the volume which has been immersed inside the liquid will be equal to how much? Very good question, but let me see how many of you will give me the answer for this one. A cubical block is floating in a liquid with 1/4 of its volume immersed in the liquid. If the whole system is being accelerating upward with an acceleration g by 4, fraction of the volume immersed in the liquid will be equal to how much? वॉल्यूम इमर्स कितना हो जाएगा बताइए? बायांसी का फोर्स बताइए पहले मुझे। बायांसी फोर्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, isn't it? So that will be total force acting on the body will be equal to how much बेटा?
This will be equal to your m into g. Mass is equals to volume of the total volume of the body जो भी लिखते हैं into density of your water और density of your cube जो भी दे रखा है into the g. अब जब ये इक्वेट हो रहा था buoyancy force दोनों की इक्वेट करेंगे ना बेटा. Volume of the body, density of your cube into your g is equals to volume immersed into density of water into g. G और g तो कैंसिल हो रहा है. So on increasing, isn't it, acceleration, so the upward acceleration just causes the acceleration due to gravity to increase na beta, but since the term of the g is getting cancelled here out in buoyancy equation, so increasing it will not have any effect on the immersed volume. Immersed volume पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो कितना रहेगा 1/4 ही रहेगा. क्लियर है? वेरी गुड. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. सानिया, एक ही स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बाकी के लोग सब आप लोग पेन पेपर रफ पेपर लेके करते रहना बेटा साथ में. चलिए. A body of density rho is been dropped from the rest from a height h into the lake of your density sigma, where sigma is greater than rho. Neglecting all distributive forces, the maximum depth to which the water sink before returning to the float on the surface will be equal to how much. यानी ये जो है ना, ये surface of water है और यहाँ पर कहीं पर अपना पानी, ठीक है ना, और ये बॉडी यहाँ से कहीं ड्रॉप कर रहा है बेसिकली, isn't it? और यहाँ से ड्रॉप कर रहा है बेसिकली, तो यहाँ पर आया and it is striking here right now, और यहाँ से होते हुए अंदर चले गए. It has been gone to a head depth of right now, for me say for example h dash, ठीक है ना. The density of the liquid is sigma and density of the body is ये जो है जहां से आया h है और इसका डेंसिटी है मान के चलो रो. डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज गिवन एज ऑफ योर रो. देखो बेटा, जब ये स्ट्राइक करेगा सरफेस पे तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा. काइनेमेटिक्स से v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है ना. तो ये मेरा पोजीशन 1 है, ये मेरा पोजीशन 2 है और ये मेरा पोजीशन 3 है. ओके. नाउ बिटवीन पॉइंट 2 and 3 now apply the Bernoulli's theorem, isn't it? Applying Bernoulli's theorem at points 2 and 3. 2 के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बेटा P नॉट प्लस रो G इंटू योर H डैश प्लस हाफ इंटू रो इंटू योर V स्क्वायर. Did? Is it clear बेटा? नाइन्थ वन इज CR ऑप्शन. ओके, देख लेते हैं, ठीक है. So that will be equal to your point 2 के पास सिग्मा है, सिग्मा इंटू G इंटू दिस विल बी H डैश प्लस ऑफ योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट. P नॉट हो गया H रो G, ये रेफरेंस के ऊपर है ना बेटा पॉजिटिव, ये तो हो गया P नॉट. यहाँ पर क्या क्या प्रेशर है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रो इंटू G इंटू योर H. क्या हो जाएगा, ये P नॉट तो गेट्स कैंसिल, isn't it? This will be rho G into your this will be equal to your H dash plus half into rho into velocity आ गई कितना मेरा बेटा, V square will be equal to 2gh. This will be 2gh which will be equal to sigma into G into H dash. ये 2 यहाँ पर ये 2 चले गया, यानी rho G into your H dash plus rho G into your H is equals to rho G into your sigma rho G into your H dash. So everywhere G also will get cancelled. So this will be equal to rho into your H dash plus rho into H is equals to sigma into H dash. पूछ क्या आ रहा है, the maximum depth to which the body sinks, यानी H dash होना है मेरे. So H dash will be equal to how much? H dash को अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ बेसिकली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H dash will be equal to H divided by sigma minus. Is it clear? हाँ जी बताओ, मैं ले रही हूँ. Please mute yourself बेटा. Clear?
कोई डाउट किसी को इसके अंदर? H dash is equal to H into rho divided by sigma minus of your rho. Option C will be the answer. आ गया सभी को? चलिए ये वाला बताइए बेटा 10th वन. A boat carrying a number of stones is floating in a water tank. If the stones are unloaded into the water level in the tank will be equal to your how much? Again, एक बार फिर से करवाऊं बेटा. कौन सा ये वाला? हाँ, अपने Bernoulli's theorem लगा रहा था. Body of density rho is been dropped. यानी initial velocity 0 है, and it is from the rest, and it is been dropped from a height of h into the lake of density sigma. तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है. Position 1 से position 2 तक. Position 1 से पोजीशन 2 तक आने के लिए काइनेमेटिक का इक्वेशन लगा रहा हूं मैं. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो v इज इक्वल टू हाउ मच और अंडर रूट ऑफ 2gh आ गया. फिर वाटर को स्ट्राइक करके फिर ये नीचे जा रही है, फिर वापस. नेग्लेक्टिंग ऑल डिसिपेटिव फोर्सेस, द मैक्सिमम डेप्थ टू व्हिच द बॉडी सिंक बिफोर रिटर्निंग टू द फ्लोट ऑफ द सरफेस, यानी जितनी हाइट अंदर जा सकता है. सो अप्लाई द Bernoulli's थ्योरम बिटवीन पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3. ठीक है. में हम ऑफिसर मन रहे पुलिस और चेयरमैन रहे पुलिस. ठीक है, चलो. और गन भी लाना. ठीक है. तो अप्लाइंग द Bernoulli's theorem at the point 2 and 3 बेटा. Point 2 and 3 पे atmospheric pressure है, and the height will be equal to rho g into your h dash plus half rho into v square. Point number 3 बेटा, from the reference अगर हम लोग ले रहे हैं basically, so that will be equal to your sigma into g into your h dash. Reference पे तो potential energy will be equal to 0 ना बेटा. Potential energy Bernoulli's theorem क्या है याद बोल दीजिए एक बार. Atmospheric pressure याद है किसी को? Atmospheric pressure plus kinetic energy per unit volume plus potential energy plus unit volume. आ गया? डन. चलिए उसको इक्वेट कर लीजिए, सिंपलीफाई हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. A boat carrying a number of stones is been floating in a water tank. If the stones are unloaded into the water level in the tank will be equal to how much? See, when the stones are on the body, when the boat weight, they are increasing the weight of the boat, and to balance that weight of the boat, a balancing force is already displacing more amount of water, na beta. But when the stones are being removed, the boat starts displacing the lesser amount of the water. Hence, the level of the water in the tank, what happens? Obviously, it will try to fall. नहीं, देखो जब बोट ऑलरेडी कैरी कर रही है स्टोन्स को, बोट इज कैरिंग द नंबर ऑफ स्टोन्स, तो इसमें क्या हुआ कि ये वाटर तो ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुका था ना बेसिकली, थोड़ा बहुत तो डिस्प्लेस हो चुका था बेसिकली, तो ये अंदर चले गए थे. अब जैसे ये स्टोन्स निकालेंगे तो लेसर वाटर डिस्प्लेस होगा ना बेटा. व्हेन स्टोन्स आर बीइंग रिमूव्ड, व्हाट इज हैपनिंग? द बोट स्टार्ट्स डिस्प्लेसिंग लेसर अमाउंट ऑफ वाटर. हेंस द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक क्या हो जाएगा बेटा? ड्रॉप होगा ना, इट विल फॉल. बात समझ में आ रही है? A boat is carrying a number of stones in floating in a water tank है. हम लोग देखो टैंक में बात कर रहे हैं, we are not talking about ocean or lake. First option remains unchanged. कैसे remains unchanged? देखो बेटा मैं आपको समझा देता हूँ. बेसिकली ये मेरा टैंक है, इसमें वाटर यहां तक भरा हुआ है मान के चल. अब इसके अंदर मैंने एक बोट रखा यहाँ पर सरफेस पे से, ये फर्स्ट सिचुएशन, और इसमें मैंने पत्थर डाला तो वाटर डिस्प्लेस हो, तो ये वाला अंदर चले गया, ऐसा कुछ मान के चलो, तो ऐसा हो गया. तो अब क्या हो गया? लेवल ऑफ वाटर तो इंक्रीज हो गया ना, यहां तक आ गया लेवल ऑफ वाटर. तो जैसे मैंने फिर पत्थर निकाले, इसमें से यहां से पूरे में से निकाल दे रहा हूँ, द स्टोन्स आर अनलोडेड, तो ये लेवल क्या हो जाएगा? वाटर जो डिस्प्लेस हो रहा है कम हो जाएगा ना, तो स्लोली फॉल करेगा. बात क्लियर है? चलिए वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 11. A block of ice is floating in a liquid of specific gravity 1.2 contained in a beaker. When the ice melts completely, the level of the liquid in the vessel. अब ये बताओ क्या हो जाएगा बस. Good question. Block of ice is floating in a liquid of specific gravity कितना? 1.2. When the ice melts completely, the level of the liquid in the vessel क्या होगा? See, density of ice is obviously lesser than the water, beta, and density of liquid will be more than the water. So even when ice is melting, the level will what happens? Rise हो जाएगा, क्योंकि density of your liquid, whatever you are taking, density of your liquid
will be greater than density of your water. Specific gravity दे रखा है ना, isn't it? The liquid plus water level क्या हो जाएगा? Liquid plus water है, ये दोनों भी है, खुल रहे हैं, तो इन दोनों का लेवल क्या हो जाएगा? Obviously increase होगा. So when the ice melts completely, the level of the liquid in the vessel, what happens? Obviously it increases. Clear है? चलिए, very good. Next one. Two liquids of densities D1 and D2 are mixed in such a way that both have the same masses. The density of the mixture, ये तो मैं क्लास में करा के फुल हो चुका था. Density of the mixture will be equal to total mass divided by total volume. Total mass divided by your total volume. यानी यहाँ पर density of your mixture will be equal to total mass मतलब बेटा capital M plus capital M divided by then total volume यानी V1 plus V2. Density is equals to mass by volume. तो फर्स्ट डेंसिटी रखा है D1 is equals to M by your V1 लिख सकता हूँ, तो V1 is equals to M by D1 बन जाएगा ना बेटा, और उसी तरह से V2 will be equal to M by your D2, यानी this will be equal to 2M divided by this is M divided by D1 plus M divided by D2. MM gets cancel, तो LCM हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 2 times of D1 D2 divided by D1 plus D2. आ गया सभी को? So 11 it's negligible change, right? Negligible change क्यों हो जाएगा बेटा? 1.2 है ना, density of water कम है, obviously density of liquid is greater than density of water. तो जब ऑलरेडी आइस फ्लोट हो रहा था उसकी वजह से लेवल ऑफ लिक्विड इंक्रीज हो रहा था ना बेटा. तो कौन सा ऑप्शन है बेटा इसके लिए? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए 2d1 d2 डिवाइडेड बाय d1 प्लस d2. क्लियर है? चल क्वेश्चन नंबर 13, ये आप लोग बताना बेटा. बारोमीटर ट्यूब रीड 75 सेंटीमीटर. कल भी एक ऑनलाइन क्लास रहेगी बेटा आप लोग को, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी पे प्रॉब्लम्स कर लेंगे थोड़ा. बारोमीटर ट्यूब रीड्स और थर्मोडायनामिक्स और केटीजी की. The barometer reads 75 centimeter of mercury if the tube is gradually inclined at an angle of 30 degrees with horizontal, keeping the open end in the mercury container, and find the length of the mercury column in the barometer. जब incline करते हैं, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट याद है आप लोगों को? जब एक कंटेनर के अंदर आपने इसको इस तरह से रखा और ये इंक्लाइंड हो गया कुछ इस तरह से at an angle of your how much right now for me 30 degrees with the horizontal. horizontal से अगर 30 degrees है तो vertical से एंगल कितनी बन जाएगी? 60 degrees. We're not changing the atmospheric pressure, so height of the mercury will not change. ठीक है ना? तो इसमें जितना हाइट भरा हुआ था, इससे पहले मैं यहाँ पर दूसरे पेन से ले लेता हूँ बेसिकली. हाँ, तो इसमें इनिशियली कितना पानी भरा हुआ था? 75 सेंटीमीटर. तो ये तो 75 सेंटीमीटर ही रहेगा, और ये जब चेंज हो गया तो यहाँ से यहाँ तक ये बन गया मेरे पास x. ठीक है ना? तो cos of your 60 degrees will be equal to your 75 divided by x. क्योंकि ये ट्यूब ऐसा था ना बेटा इनिशियली, ये तो ट्यूब इनिशियली ऐसा था, तो यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ था, तो ये था 75 सेंटीमीटर. उसके बाद ये इंक्लाइंड हो गया ऐसा, ट्यूब तो चेंज नहीं हो रही, तो लेवल ऑफ लिक्विड जो है ना ऐसा हो गया बेसिकली. तो ये हो गया मेरे पास x और ये एंगल हो गई 60 डिग्रीज. तो cos 60 will be equal to how much? 75 divided by x. Isn't it? 60 cos 60 will be equal to how much for me? Cos 60 is how much? 1 by 2. That is equals to 75 divided by x. So x will be equal to 75 to 150. तो ये हो गया 150 सेंटीमीटर. क्लियर है? वेरी गुड. चलिए 3 मिनट बाकी है. A metallic sphere is weighing 3 kg in the air is held in the string so as to completely immerse in the liquid of relative density 0.8. The relative density of the metal is given as 10. The tension in the string will be equal to how much? ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी करवाया था. ऐसा मेरे पास एक थ्रेड है, ये हो गया मेरे पास एक बॉल, and it is immersed in the water, completely immersed in the water. तो इस पे जो फोर्सेस लगेंगे, पहले एक तो बताओ क्या क्या फोर्सेस लगेंगे. एक तो इसका वेट नीचे लगेगा बेटा mg, लिक्विड की वजह से इसका टेंशन तो ऊपर ही रहेगा, और लिक्विड की वजह से बायोन फोर्स विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो. क्लियर है? दिस इज द डेंसिटी ऑफ योर मेटालिक स्फीयर, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय योर रो एफ. तो टेंशन कितना बन जाएगा बेटा? T माइनस ऑफ योर mg, T विल बी इक्वल टू योर mg माइनस बायोन फोर्स, यानी T विल बी इक्वल टू mass will be equal to volume of the body, density of the water into your G, minus density of the liquid, volume into G.
ठीक है ना? इज इट क्लियर? चलो, डेंसिटी ऑफ द मेटल विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डेंसिटी ऑफ द मेटल माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ये बन जाएगा V इंटू जी। डेंसिटी ऑफ द मेटल कितना है बेटा? 10 माइनस ये वाला कितना है? 0.8 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, मास इज राइट नाउ फॉर मी 3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी दिस विल बी इक्वल टू 10 isn't it? इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 के बराबर हो जाएगी। उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा, फिर से एक बार ट्राई करिए, कंपलसरी अपने आप ही भी एक बार करिए। मैं तो रफली आप लोग बोल दे चुका हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। The rectangular block is 10 centimeter to 10 centimeter, 10 centimeter, 10 into 10 into 15 is floating in a water of 10 centimeter side vertical. If it floats with 15 centimeter side vertical, then the level of the water will be equal to your how much? Less than 1 minute है बेटा। See, mass of the block will remain same beta. Volume displaced of the water will also remain same. So level of the water will obviously is not going to change. It will remain for me the same. Clear है? जल्दी से। Question number 16. A flat plate area दे रखा है, placed on a flat surface and separated by a film of oil 10 power minus 5 meter thick, whose coefficient of viscosity is 1.5. The force required to this one. Force का formula का F is equal to neta A into your dV divided by dx. Velocity gradient. इसको substitute कर लो. Coefficient of viscosity 1.5 है. Area is right now for me 0.1 into this one is 10 power minus 3 divided by 10 power minus 5 x. So simplify कर लो, that will give me the answer. ठीक है ना? Should we rejoin or not? नहीं बेटा, नहीं हो सकता। We'll make it tomorrow again. I'll inform you the timings. ठीक है ना? यहाँ से तक अपने को मैंने असाइनमेंट्स दे रखा है ना, वो कर लो।